which has been used to find out the earthwork in excavations. ठीक है ना? तो earthwork in excavation के जो चार methods थे, तो we have discussed in previous lectures the four methods of earthwork in excavations. The first was mean area method, next was mid sectional method, third was prismoidal method and trapezoidal method. ठीक है? So these were the four methods which we have already discussed in from last 2 days. We have discussing about the earthwork in excavation about these methods. We have solved the problem related with the earthwork in excavation, a simple problem in previous lecture. Only one that is the section of road was given. We have calculated by mean area methods. Depending upon that, we will solve some more numericals. So this type of numericals which you have you can see in your mobile phones or in laptops. So here I'm first of all reading the problem. That is example number 3. Already we have solved 2 examples. The starting 2 examples were very simple. So here we will start the third example related with the earthwork in excavation of roads. Okay. So which things are given? First, we will see the given data. Depending upon the given data, we will try to solve the problem. Okay? Calculate quantity of earthwork of road from the following data by using mid-sectional method. Yeah. Yes. So here the name it has been given. We have to use the mid-sectional method. If in the problem, if the name of the method it has been not given, if we can use mean area method or we can use mid-sectional method. But here in this problem, it is clear that we have to use the mid-sectional method. That means mid-sectional method. That means we have to find out, or in the form of depth, we have to calculate the earthwork in excavations. ठीक है? तो earthwork in excavation के लिए क्या यूज करेंगे आप? D1 minus D1 plus D2 divided by 2 and 2 plus 3 divided by 2 and so on. That means we have to take the average depth. Average depth लेना है. Mid sectional method में क्या लेते हैं आप? Average depth लेते हैं. तो it is clear to all of you. We are using the depth method. ठीक है ना? Mid sectional method, that means depth method. Next line में देखो नीचे में लिखा है formation width is 12 meters. That means capital B is 12 meters. स्लोप इन बैंकिंग. अब देखो बैंकिंग में स्लोप कितना आता है? एस बी. एस स्टैंड्स फॉर स्लोप, बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग. तो मैंने यहाँ पे नीचे में भी लिखा है. तो slope in banking is given as 2:1. This 2 stands for horizontal and 1 stands for vertical. ठीक है ना? So that means this 2 for the solving the problem, this 2 is used. ठीक है ना? 2:1 का जो 2 है वो 2 that horizontal जो है उसका value, horizontal value of that in the form of slope we will use. ठीक है? तो slope in banking is 2:1. Slope in cutting is also given, that is 1.5:1. So 1.5 again we will take as SC. S stands for slope, C stands for cutting. तो SC जो लेंगे आप वो क्या लेंगे? 1.5. Yes, this thing is very important. The road formations or the formation of road will be in a falling gradient. कैसा रोड है? वो फॉलिंग ग्रेडियंट है. ठीक है ना? स्टीप स्लोप है, स्लोप फॉर्म में है ना? तो फॉलिंग ग्रेडियंट कितना वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में कितना ग्रेडियंट आपको देना है? फॉलिंग ग्रेडियंट में वी हैव टू गिव 1/200. इट हैज बीन गिवन एज 1/200. क्या है फॉलिंग ग्रेडियंट? कितना है? 1/200. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या गिवन है? देखो थर्ड लाइन में देखो, फॉर्मेशन लेवल एट स्टार्टिंग चेनेज इट हैज बीन गिवन एज 51.40 मीटर्स. ठीक है? तो स्टार्टिंग चेनेज कितना गिवन है? 51.4 meters. ठीक है? दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग चेनेज. Again, changes are given here. Change there is a roof which has been given in the form of column. That is this topmost row. It is changed 0, 30, 60, 90, 120 and 150. Change interval is 30 meters. अगर आप इसका सबका इंटरवल देखेंगे तो कितना है? देखो 30 minus 0, 30, 60 minus 30, 30, 90 minus 60, that is 30 and so on. ठीक है? That means change difference is 30 meters. The intervals for the section of roads कितने sections के? 30 meters के. ऐसा कितने sections है? We are having 6 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6 है. ठीक है ना? तो ऐसे कितने इंटरवल्स पे होगा? 30 meters का चेनेज है. ग्राउंड लेवल it has been given as 50.8 for the first 0 चेनेज. 30 चेनेज के लिए 50.6 है. 60 चेनेज के लिए 50.7 है. 90 चेनेज के लिए 51.2. 120 चेनेज 51.4 and 150 change it has been given as 51.3. 51.3. So these are the ground levels.
And what is the formation level at the starting chainage? The formation level at the starting chainage, it has been given as 51.40 meters. तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये प्रॉब्लम सब क्लियर है? जो डाटाज गिवन है वो वी हैव टू प्रॉपर्ली रीड द डाटाज व्हिच हैज बीन गिवन एंड व्हिच थिंग्स आर गिवन वी हैव टू फर्स्ट राइट डाउन. ठीक है, तो सबसे पहला मिड सेक्शनल मेथड आप यूज करेंगे. फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पे लिख दिया, देखो B इज इक्वल्स टू कैपिटल B स्टैंड्स फॉर द फॉर्मेशन विड्थ. So it has been given as 12 meters. So we have write down capital B as 12 meters because while writing down in the formula we are using capital B. ठीक है ना, जैसा फॉर्मूला में यूज करते हैं वैसे लिखो है. ठीक है, तो कैपिटल B is equals to 12 meters. Next, FL for the formation level for the starting chainage, it has been given as 51.4. So we have written here as 51.4 as it is. Falling gradient in, so which is given as 1:200. Slope in banking, SB is given as 2, and slope in cutting, SC is given as 1.5. So here this formula we have already we have discussed in previous lecture how to find out the FL at next chainage. बाद वाले चेनेज का FL कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द FL ऑफ द नेक्स्ट चेनेज. तो हाउ टू फाइंड आउट FL एट द नेक्स्ट चेनेज? तो नेक्स्ट चेनेज का FL कैसे निकालेंगे? FL ऑफ प्रीवियस चेनेज प्लस और माइनस 1 अपॉन ग्रेडियंट इनटू चेनेज डिफरेंस. ठीक है, this is the formula which has been used to find out the formation level at the next chainage. तो previous ले लो, प्लस और माइनस रहेगा, फॉलिंग रहेगा तो माइनस, राइजिंग रहेगा तो प्लस, 1 अपॉन ग्रेडियंट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस है. और चेनेज डिफरेंस कितना है? देखो चेनेज डिफरेंस इज 0, 30 माइनस 0 30, 60 माइनस 30 30, एंड ओवरऑल में अगर देखा जाए तो 30 का ही डिफरेंस है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 150 तक. वन बाय वन. अब सबसे पहले निकाल लो फॉर्मूला. अब ये तो ओरिजिनल था, मगर इससे डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशंस वी विल स्लाइटली change the formula. FL at next chainage is equals to FL of previous chainage. Instead of plus minus we will take as minus 1 upon gradient into chainage difference, into chainage difference. ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग्स के FL at next chainage मतलब अब आ जाएगा पहला. ठीक है ना, फर्स्ट इज गिवन एज दिस 51.4. तो प्रीवियस का क्या लेंगे आप यहाँ पे? 51.4 माइनस 1 अपॉन ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट वैल्यू इज गिवन एज 200, 1:200. ठीक है, तो 200 इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय चेनेज डिफरेंस कितना हो रहा है? 30. तो 51.4 माइनस 1/200 मल्टीप्लाइड बाय 30 इट कम्स टू बी 51.25. ये सबका आ रहा है क्या 51.25? यस सर. यस सर. ये फॉर्मूला समझ में आया? FL at next chainage is equals to FL of previous chainage plus or minus 1 upon gradient into chainage difference. ठीक है, तो ये फॉर्मूले से, और ये सिंपल फॉर्मूला इन द सेंस ये एक मतलब एक लॉजिकल वे है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द FL at next chainage. बहुत सिंपल है. ठीक है, ग्रेडियंट भी आप कंसिडर हो रहा है यहाँ पे, चेनेज का डिफरेंस भी कंसिडर हो रहा है, और प्रीवियस से आपको मेंटेन करना है, क्योंकि कैसा है कि रोड एक मतलब एक प्रॉपर लेवल में होता है. तो लेवल कैसा मेंटेन होगा? प्रीवियस के अगेंस्ट में वी कैन फाइंड आउट द लेवल ऑफ नेक्स्ट. प्रीवियस का कंसिडर करके अपन नेक्स्ट निकालते हैं. ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट निकाले, प्रीवियस का कंसिडर करके 51.4 कंसिडर करके नेक्स्ट निकाले 51.25. अब नेक्स्ट के लिए देखो FL एट नेक्स्ट चेनेज अब क्या बन जाएगा इसके लिए? प्रीवियस क्या बन जाएगा? 51.25. प्रीवियस क्या बनेगा इसके लिए? 51.25. अब 51.4 नहीं लेंगे आप, इसके लिए प्रीवियस बन गया 51.25. ठीक है, माइनस 1/200 मल्टीप्लाइड बाय 30. अब ये अगेन 51.1. अब नेक्स्ट आप बताएंगे. नेक्स्ट चेनेज बताओ, थर्ड वाला. थर्ड बताओ, फर्स्ट सेकंड मैंने निकाल दिया, थर्ड बताओ. FL 50.95. कितना? 50.95. 50.95. 50.95. यस, तो नेक्स्ट इज 50.95. 50.95. तो यहाँ पे हाइड किया था मैंने, तो यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ मैं. ठीक है, 50.95. तो कितना आ गया देखो? 50.95 आ गया. यस, अब उसी से बेस से 50.95 के बेस से अब नेक्स्ट निकालो. 50.95 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आएगा बताओ? 50.8. यस, 50.8. अब 50.8 के बेस पे नेक्स्ट निकालो चेंजेज. 50.8 50.65. ठीक है, वैसे 50.65 के बेस पे नेक्स्ट चेंजेज कितना आ जाएगा? 50.5. यस, 50.50. अब टोटल कितने हैं देखो अपने पास?
total there are 6. So 1 2 3 4 5 6 6 GLs are given. That means we have to find out 6 FLs for 6 GLs. ठीक है ना, 6 डिफरेंट ग्राउंड लेवल से उसका 6 डिफरेंट फॉर्मेशंस लेवल बन गए आपके पास। ये काम आपको कब तक करना है, जितने आपके लेवल्स गिवन रह गए, जितने आपके चेंजेस गिवन रह गए नंबर्स में, उतने नंबर्स तक आपको ये कैलकुलेशंस करते जाना है। ठीक है, तो अभी अपनी कंडीशन के हिसाब से देयर आर 6 डिफरेंट सेक्शंस वेयर गिवन। ठीक है ना, इसके लिए वी हैव टेकन एज, अगर इसको नाम देते हैं तो FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 एंड FL6। ठीक है, ठीक है, GL1, GL2, GL3, GL4, GL5 एंड GL6 जैसे थे वैसी FL के 6 वैल्यूज आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यूज को भी देखेंगे आप तो देखो फॉलिंग हो रहा है, क्योंकि अपन ने कौन सा ग्रेडियंट लिए, फॉलिंग लिए। तो सबसे पहला था, सबसे ऊपर में क्या था, गिवन वाला 51.4, वो तो गिवन था, उसी से नीचे आ गया अपन, देखो 51.25, उससे और नीचे आ रहा है 51.1, और नीचे आ रहा है 50.95, और नीचे में आ रहा है 50.80, अगेन 50.65, अगेन 50.50। ठीक है, ये इटसेल्फ, these level of formation itself indicates we are constructing a road in a falling gradient। ठीक है ना, तो फॉलिंग ग्रेडियंट में वी आर फॉर्मिंग द रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर्मेशन ऑफ रोड इन अ फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो ये इसके लेवल्स भी आप देखेंगे फॉर्मेशन लेवल के, वो खुद आपको बता रहे हैं कि आपका रोड फॉलिंग ग्रेडियंट में। ठीक है, तो ये एक बार एक चेक कर लेना ये फॉलिंग ग्रेडियंट में हो रहा है क्या, और कितने कहाँ तक करना है आपको, 6 लेवल्स, 6 चेंजेस तक करना है। अब ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको ये सिंप्लीफाइड वे में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा बाय फिलिंग द डाटा इन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले देखो चेनेज है, नेक्स्ट GL है, नेक्स्ट FL है, क्योंकि GL तो चेनेज गिवन था, और 0 चेनेज गिवन था, GL गिवन था, FL अभी निकाले अपन ने, उसका एक कॉलम बना लिया आपने। अब मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था हाउ टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ earthwork in excavations in cutting and filling। earthwork in excavation in cutting and filling का फॉर्मूला कैसा है, तो D is equal to FL minus GL। ये फॉर्मूला मतलब ये फिक्स है। ठीक है ना, FL minus GL। अगर डेप्थ में वैल्यू माइनस आती है तो क्या कंसिडर होगा, माइनस से क्या एज्यूम करेंगे अपन माइनस में, अगर कटिंग, यस कटिंग, और FL minus GL अगर पॉजिटिव आती है तो दैट इंडिकेट्स बैंकिंग, बैंकिंग, यस फिलिंग और बैंकिंग, बैंकिंग। बैंकिंग। ठीक है ना, तो FL minus GL ये बेसिक फॉर्मूला है, बट आपके कैलकुलेशंस में जो पार्ट माइनस में आता है उसको माइनस में लिखना है, जो पार्ट प्लस में आता है उसको प्लस में लिखना है। बट आगे के फॉर्मूले में वो माइनस साइन और वो प्लस साइन अब आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख के आप एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास फॉर्मूला यूज होना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है अपने को, वी आर यूजिंग मिड सेक्शनल मेथड, मतलब सेक्शन से रिलेटेड आप फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब डेप्थ से रिलेटेड। तो मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया, मीन डेप्थ, बिकॉज वी आर यूजिंग द डेप्थ फॉर्मूला, इसलिए एक कॉलम इंसर्ट किया, दैट इज 5th कॉलम। यहाँ पे अगर नाम दे रहे हैं आप, ग्रीन रोज में मैंने नाम दिया है, फर्स्ट इज चेनेज, सेकंड इज नंबर 2 इज GL, थर्ड इज FL, और 4th डेप्थ हो जाए, 5th जो रहेगा वो मीन डेप्थ रहेगा। दैट मीन्स जो डेप्थ का भी निकाले थे 4th में उसी का मीन आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वी आर यूजिंग एज मीन डेप्थ। ठीक है, अब ओरिजिनल फॉर्मूला एरिया का क्या है बताऊं, एरिया का ओरिजिनल फॉर्मूला इज, व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस, BD plus SD square। yes, BD plus SD square, this is nothing but the original formula or the formula which has been used to find out the earthwork in excavation by any method, by any method, जो चारों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करो, but to find out the area of earthwork in excavations we have to use this formula as BD plus SD square, BD plus SG square। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में BD लिख दिया यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में SG स्क्वायर लिख दिया, मतलब 6 नंबर कॉलम का BD हो गया, 7th नंबर कॉलम में SD स्क्वायर हो गया। अब ये एरिया क्या, मतलब कि 6 + 7 हो जाएगा, मतलब BD plus SG स्क्वायर। ठीक है, तो BD plus SG स्क्वायर, इसको मैंने अलग से नहीं लिखा, ये अज्यूम्ड है कि ये एरिया मतलब ये दोनों का एडिशन हो जा रहा है, BD plus SG स्क्वायर। अब BD plus SG स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द एरिया।
बट लेंथ भी लेना पड़ता है क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी। क्वांटिटी कब बनेगा, जब एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ भी ले गए, तो एरिया के बाद अब मैंने एक कॉलम ले लिया, 9th नंबर कॉलम में लेंथ भी ले लिया। नेक्स्ट लास्ट कॉलम इज क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। इफ द क्वांटिटी इट कम्स, इफ द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज इन पॉजिटिव, ठीक है, और या फिर उसकी जो डेप्थ के फॉर्म में अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर पॉजिटिव दिखता है अपने को तो दैट विल बी, इट कम्स अंडर द फिलिंग। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब डेप्थ में अगर नेगेटिव दिखता है कहीं पे, तो वी विल फीड दिस इन अंडर द क्वांटिटी इन कटिंग, ठीक है। तो ऐसे दो कॉलम्स बना दिया अपन ने, फिलिंग का एक कॉलम बन गया और कटिंग का एक कॉलम बन गया, ठीक है। So is that clear to all of you? This various heads which has been mentioned in this columns, ये जो various heads जो consider किए थे वो सब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, So sir. we will try to solve this problem, ठीक है। तो अपन ने FL सारों के निकाल लिए, तो वो FL और GL के बेस पे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम उसका मतलब पूरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया ऊपर में, write down the name of the method which you are using. So we are using mid sectional method, so write down first the name, so we have written as mid sectional method and the columns. अब इसमें देखो वन बाय वन वी विल ट्राई टू फिट द थिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेनेज का जो था गिवन डाटा में, जो ऊपर में चेनेज था वही चेनेज मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो था 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150 के चेंजेस यहाँ पे लिख दिया मैंने। चेंजेस 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150। उसके वैल्यूज भी लिख दिया। 50 था तो 50.8, 50.6, 50.7 जो गिवन डाटा था एज इट इज, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो एज इट इज वी हैव टू राइट डाउन ऑल द जीएल्स लिख दिए। अब एफएल के जो जो वैल्यूज थे, अब वो एफएल वन बाय वन लिख दिया। सबसे पहला एफएल जो गिवन था वो गिवन एफएल लिख दिया आपने, ठीक है। तो गिवन एफएल कितना हो गया आपके पास, 51.4, वो गिवन क्वेश्चन में था, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 51.25 आपने लिख दिए यहाँ पे। 51.25 जो निकाले थे कैलकुलेशंस में। 51.1 वो भी लिख दिए। 50.95 वो भी लिख दिए। 50.80 वो भी लिख दिए है। 50.65 वो भी लिख दिए है। लास्ट इज 50.50 यहाँ पे अपना GFL के फॉर्मूलेज में एंड हो गया, ठीक है ना। इतना एफएल्स अपन ने कैलकुलेट किए थे, वो सारे एफएल्स सबसे पहला वाला गिवन था और बाकी अपन कैलकुलेट किए थे। तो ये सारे एफएल्स आपने, हाँ बोलिए सर। अपने पास 150 तक ही है ना चेन्नई सर, 180 क्यों लिया सर? आपने एक्स्ट्रा लिया सर? 150 एक जीएल अपने पास आ रहा है कि एक जीएल गिवन है 51 पॉइंट, यहाँ पे एक जीएल और एक था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 180 और यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू एफएल की 51.0, यस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक्स्ट्रा नहीं था, वो गिवन डाटा में ही था, ठीक है ना, वो यहाँ पे नहीं आया शायद से। तो यहाँ पे 180 भी आ गया है, यहाँ पे 180 आ गया है और 180 के लिए 51 आ गया। एफएल जीएल गिवन था यहाँ पे, यस, जीएल जो आ गया यहाँ पे 51 आ गया। तो अपने पास ओवरऑल में 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक गिवन था तो 6 कैलकुलेशंस किया अपन ने, तो ये 6 कैलकुलेशंस आ गए और एक गिवन था। टोटल 7 एफएल्स अपने को मिल गए हैं। टोटल 7 एफएल्स अपन ने कैलकुलेट किए, मतलब 6 कैलकुलेट किए थे और एक गिवन था, मतलब 7 हो गए। यहाँ पे 180 क्वेश्चन में नहीं मतलब लिखा नहीं था मैंने, तो 150 यहाँ पे लिख लो, या फिर किसी ने मतलब स्नैप लिया होगा तो फिर से ले लो। तो 150 था, उसके बाद 180 भी था और 51.3 जीएल था और यहाँ पे 51 था, ठीक है ना। लास्ट जीएल जो था वो 51 था, जिसका चेंज 180 था, ठीक है। तो हियर वी हैव टेकन एज 180। यहाँ पे 180 तक ले लिया आपने। 150 51.3 हो गया, 180 के लिए 51 हो गया। अब इसके लिए 50.0 अपन ने निकाले थे, कैलकुलेशंस बराबर किए, सिर्फ गिवन डाटा में सिर्फ एक लास्ट वाला मिसिंग था वहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट मिसिंग का मैंने क्वेश्चन में भी लिख दिया हूँ। 180 का जीएल था 51, तो वी हैव राइट डाउन एज जीएल एज 51, ठीक है। बाकी चीजें करेक्ट है सबके, बाकी चीजें करेक्ट है, यस। तो 50.50 हो गया। 50.50 तक वी हैव फाइंड आउट द कैलकुलेशंस, यहाँ तक आपने कैलकुलेशंस किए। अब डेप्थ में देखो क्या निकाल रहे हैं आप, डेप्थ निकाल लिए एफएल माइनस जीएल। आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है, ओके। तो एफएल माइनस जीएल अब वन बाय वन निकालते जाओ, एफएल माइनस जीएल करते जाओ। बताओ सबसे पहला एफएल माइनस जीएल कितना होगा। 51.4 माइनस 50.8 कितना आएगा एफएल माइनस जीएल?
0.6. 0.6 प्लस में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. यस। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो 51.25 माइनस 50.6, 51.25 माइनस 50.6, 0.65 आ रहा है प्लस में ये भी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगेन FL माइनस GL फॉर 60 चेनेज के लिए निकालो। 51.1 माइनस 50.7, 0.4 आ रहा है। 0.4. Yes, प्लस में sir. आ रहा है। यस। नेक्स्ट 90 चेनेज के लिए देखो 50.95 माइनस 51.2, अब यहाँ पे हो गया माइनस में आ गया। ठीक है, 50.95 माइनस 51.2 कितना आ रहा है? Minus Minus 0.25. 0.5. 0.25। माइनस। अब यहाँ से देखो माइनस आ गया, मतलब ये पार्ट कटिंग में आ गया। ठीक है, माइनस माइनस 0.25। नेक्स्ट लिखो 50.8 माइनस 51.4 कितना आ रहा है? Minus 0.6. माइनस 0.6। माइनस 0.6। Minus 0.6. 150 चेंजेस के लिए लिखो 50.65 माइनस 51.3 Minus माइनस 0.65. 0.65। माइनस 0.65। लास्ट 180 जो अपने क्वेश्चन में मिसिंग था, है ना, अभी लिख दिए थे फिर से अपन ने। तो 50.5 माइनस 51 कितना आ रहा है? माइनस Minus 0.5। 0.5. यस, माइनस 0.5। दैट मीन्स ये नीचे के 4 वैल्यूज कटिंग आ गए और ऊपर के 3 वैल्यूज फिलिंग के आ गए। तो ये सब चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर हो गई Yes, सबकी? sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ से इतनी क्लियर हो गई। तो अब मीन डेप्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे आप। ठीक है, अब मीन डेप्थ में फॉर्मूला यूज करने से पहले जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आप एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे, मीन एरिया फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या फिर मिड सेक्शनल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना है कि डेप्थ के जब आप प्लस और माइनस के जो भी डेप्थ निकालेंगे, वो डेप्थ निकालने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर। कौन सा फिगर निकालना है वो राइट साइड में मैंने ड्रॉ किया। अभी बात के कैलकुलेशंस अभी मत जल्दी करो, जल्दी मत करो कि ये बाकी के कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, एक बार अपने डेप्थ निकाल लिए, प्लस माइनस में जो भी वैल्यूज आ गई है, अब वो प्लस माइनस से आप देखेंगे यहाँ पे 60 चेंजेज की वैल्यू आ गई 0.4। आइए 60 चेंजेज की वैल्यू प्लस 0.4 और 90 चेंजेज की वैल्यू आ गई है माइनस 0.6। मतलब ये क्या हो गया, ये फिलिंग से कटिंग की तरफ चले गया, फिलिंग से कटिंग की तरफ गया। मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ चेंजेज भी हो रहा है, उसके अलावा फिलिंग से कटिंग की तरफ चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, चेंजेज डिफरेंस फॉर्म होगा। ठीक है, 0.4 प्लस था और माइनस 0.25 हो गया। इसके लिए मैंने एक सेपरेट फिगर राइट साइड में ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगुलर फिगर। तो अभी क्या करो कि मैं एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके ऊपर में प्लस 0.4 था। ठीक है, प्लस 0.4 था लेफ्ट साइड में, और माइनस हो गया, दूसरी वैल्यू क्या हो गई चेंजेज की, माइनस 0.5। तो मैंने एक ट्राइंगल में नीचे की तरफ माइनस 0.25 ड्रॉ किया और ये दोनों को क्रॉस से इसको ज्वाइन कर लिया। ये दोनों को क्या किया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये चेंजेज का जो डिफरेंस हुआ 0.4 और 0.25, कितने चेंजेज डिफरेंस के लिए हो गया, 90 माइनस 60, मतलब 30 के लिए। 30 में कुछ पार्ट पॉजिटिव बन गया और कुछ पार्ट नेगेटिव बन गया। मतलब 30 का जो चेंजेस था, 30 चेंजेस डिफरेंस था, उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव बन गया और कुछ पार्ट नेगेटिव बन गया। बट हाउ मच पार्ट we will considered as positive and how much part of road we will consider under the negative, that is cutting में कितना जाएगा और filling में कितना जाएगा, ये निकालने के लिए आप ये टोटल डिस्टेंस कंसिडर करो 30। ठीक है ना, टोटल क्या है, ये टोटल डिस्टेंस हियर इट हैज बीन गिवन एज 30। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है, 30 है, टोटल लेंथ इज 30। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये पार्ट सिर्फ ऊपर का ट्राइंगल का जो पॉजिटिव था, वी विल कंसिडर दिस एज एक्स, टोटल इज 30। तो एल, टोटल इज एल इज 30, तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, एल माइनस एक्स लिख रहे हैं बट एक्चुअल में इट इज 30 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये ऑलरेडी आपने मैथमेटिक्स में रूल पढ़े होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये ऊपर में एक ट्राइंगल बन गया, एक नीचे में ट्राइंगल बन गया। ऊपर का ट्राइंगल पॉजिटिव है, नीचे का ट्राइंगल नेगेटिव।
तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कैसा निकालते हैं आप? दिस वर्टिकल साइड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल साइड, that is vertical is 0.4 divided by x, that is equal to vertical side 0.25 divided by horizontal side, that is L minus x. So 0.4 divided by x, that is equals to 0.25 divided by L minus x, but L is 30, therefore 30 minus x. So is that clear to everyone? Similarity of triangles कैसे यूज किए आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि फिलिंग से कटिंग में जो चेंज हो रहा है, ये पॉइंट जो निकालना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पूरा पार्ट कटिंग में है वो सिंपल हो गया, पूरा पार्ट फिलिंग में है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ पार्ट कटिंग में है और कुछ पार्ट फिलिंग में है, तो ये जो है मतलब जो पॉइंट से वो चेंज हो रहा है वो पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पॉइंट एट विच इट इज चेंजिंग फ्रॉम कटिंग टू फिलिंग, कटिंग टू फिलिंग, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया है। कटिंग के लिए मैंने मतलब पॉजिटिव रहता है वैल्यू, तो ऊपर की तरफ ले लिया लाइन से। एसएफडी वीएमडी पढ़े होंगे ना आपने, एसएफडी वीएमडी, तो वो शेयर फोर्स डायग्राम ही एज गुड एज आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी शेयर फोर्स वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ले लिए, नेगेटिव था तो नीचे की तरफ ले लिया आपने, और उसको एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया आपने। तो ये वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, तो 0.4 डिवाइड बाय x, दैट इज इक्वल्स टू 0.25 डिवाइड बाय l माइनस x। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये आपने मैथ्स में और मैथमेटिक्स में M1 M2 में भी स्टडी किए होंगे और स्कूल लेवल में भी स्टडी किए होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जस्ट देयर इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस। तो 0.4 मल्टीप्लाई करो 30 माइनस x से, 0.25 मल्टीप्लाई करो x से, ठीक है। तो अब क्या होगा? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस x, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय x। तो अब ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 30 क्या होगा? 12। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा? माइनस 0.4x, 0.23x एज इट इज हो जाएगा। 0.4x राइट साइड लेके चले जाओ तो 12 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 0.25x हो जाएगा। ये दोनों x को सिमिलर टर्म्स थे तो ऐड कर लो, तो 0.4 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? 0.65x हो जाएगा। अब क्या करना है? x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 0.65 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाय 0.65, तो x कितना बन गया? 18.46 मीटर्स। तो 18.46 मीटर इज x, मतलब ये डिस्टेंस से वो चेंज हो रहा है फिलिंग टू कटिंग 18.46 मीटर्स पे। तो ये चीज समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिख के रखना है आपको, ठीक है, लिख के रखो, क्योंकि ये डिफरेंस जो है ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये x पॉइंट्स में भी डिफरेंस होगा, जैसे किसी का 18.45 आ रहा है, तो आपके आगे के आंसर्स 0.05 के चेंज होने की वजह से 0.05 भी अगर चेंज हो रहा है और 0.01 भी चेंज हो रहा है, तो अब भी आपके पूरे कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स में भी इसका आंसर करेक्ट होना है। मैं बताऊंगा क्यों होना है कि x की वैल्यू 18 पॉइंट किसी की 40 आ गई, या फिर 48 आ गई, या फिर 45 आ गई, या फिर 44 आ गई, तो वो इतना माइनर चेंज भी आपके आगे के पूरे कैलकुलेशंस चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू अभी क्या आ गई? 18.46 मीटर्स। अब टोटल डिफरेंस कितना था? ये कौन से वैल्यू में चेंज हुआ? देखो 90 से लेके 60 तक, मतलब अगर आप रिवर्स वे में देखेंगे तो 90 माइनस 60, मतलब ये 90 और 60 के चेंज में, मतलब ये मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे इसको कर दो रेड में कर दो, या फिर इसको हाईलाइट कर दो। ये चेंज में क्या हुआ? ये चेंज हुआ 60 और 90 के, इसके अंदर ये चेंज हो गया, मतलब 30 के लिए हो गया, एक्चुअल हो गया L माइनस एक्स। अब L माइनस एक्स करो तो क्या हो जाएगा फिर? 30 माइनस एक्स, तो L इज 30, तो 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स बताओ कितना आएगा? 30 माइनस 18.46, यस 11.53 हाँ 11 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54 30 माइनस एक्स 18.46, तो कितना आ रहा है ये? 11 पॉइंट कितना बोल रहे हैं आप? 11.54, ठीक है। तो दूसरा डिस्टेंस क्या बन गया इसका? 11.54। ये बड़ा ट्रायंगल बन गया इसका ऊपर का। फिलिंग की वैल्यू बन गई 18.46 और कटिंग की वैल्यू स्मॉलर ट्रायंगल बन गया, इसकी लेंथ बन गई 11.54। 11 दिख रहा भी है, बड़ा छोटा है ना, दिख रहा है ना बड़ा छोटा,
तो ये छोटा ट्राइंगल की वैल्यू लेंथ होगी 11.54 और बड़ी की लेंथ होगी 18.46. बट वेयर वी विल यूज दिस लेंथ, so we will use this length intermediate in between this 60 and 90. कहाँ पे यूज करेंगे आप? 60 और 90 के बीच में. तो अब कैसे यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. तो क्या डिफरेंस था? 18.46. ये डिफरेंस को मैंने यहाँ पे हाइड किया था, बट एक्चुअल यहाँ पे मैं अब उसको अनहाइड कर दूंगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई. तो 60 था और 90 था, ये दोनों के बीच में अभी वैल्यू आई अपने पास 11.46. सॉरी, कितनी आई अपने पास? 18.46. ठीक है ना, 18.46. तो 60 प्लस 18.46 ऐड करो, कितना आ रहा है? 28.46. 48.46. नहीं, 60 प्लस 60. 78.46. 78.46. ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड किया था, अब आ गया 78.46. दिख रही है यहाँ पे? दिख रही है यहाँ पे 78.46? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सर रिपीट कराइए ना. हाँ, रिपीट कराइए. अच्छा, रिपीट ये करो. ठीक है, अभी क्या करे आपने? सबसे पहले आपने क्या करे, यहाँ पे कौन से चेंजेस में डिफरेंस हो रहा है? डेप्थ देखो, प्लस से लेके माइनस तक चेंज कहाँ पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है. 0.4 प्लस था और माइनस 0.25 माइनस हो गया. ठीक है, दैट मीन्स ये फिलिंग से कटिंग में चेंज हो रहा है. डेप्थ के फिगर में देखो, ये डेप्थ में मैं इसको वो कर सकता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ. ये तो यस, ये पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो फिलिंग से कटिंग में. ठीक है, तो मतलब कुछ पार्ट फिलिंग में गया, कुछ पार्ट कटिंग में गया. मतलब 60 जब था तो फिलिंग में था और 90 जब हो गया वो बन गया कटिंग. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ किया ट्राइंगल का. तो अबव द लाइन वी हैव कंसिडर्ड एज फिलिंग एंड बिलो द लाइन माइनस होने की वजह से नीचे की तरफ मैंने एक हाइट में उसको रिप्रेजेंट किया 0.25 टू कटिंग. अब ये दोनों लाइन से एक ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना. एक मतलब लाइन से मैंने क्रॉस लाइन से इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया. तो ये इटसेल्फ इंडिकेट्स कर रहा है ये प्लस लाइन के ऊपर में पॉजिटिव हो गया, लाइन के नीचे में एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया, वो नेगेटिव बन गया. ठीक है, अब जो पॉजिटिव बना है उसको आप एक्स कंसिडर कर रहे हैं. मतलब ये डिस्टेंस निकालना, एक्स इन द सेंस अननोन डिस्टेंस. और L माइनस एक्स मतलब टोटल डिफरेंस था 90 माइनस 60. तो 90 माइनस 60, ये सारा काम 30 मीटर वाले चेंजेस में हो रहा है. 30 मीटर में दोनों वैल्यूज आ रही है. ठीक है, तो ये टोटल लेंथ बन गई अपने 30 मीटर, 30 मीटर्स की बन गई टोटल लेंथ, जिसमें कुछ पार्ट फिलिंग में बन गया, कुछ पार्ट कटिंग में बन गया. तो ये बन गया x, ये बन गया L माइनस एक्स. इससे आपने निकाले 18.46. 18.46 कैसे निकला ये तो समझ में आ गया था आपको? यस सर. 18.46 समझ में आ गया था. 18.46. यस सर, वो 60 प्लस कुछ बताया था ना वो वो बता वाला. देता, ठीक है ना, वो बता देता. ठीक है, तो 18.46 आ गया, मगर कहाँ पे आ रहा है ये? 60 और 90 के बीच में आ रहा है. ठीक है ना, बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 0.4 और माइनस 0.25 इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वैल्यू 18.46. 18.46 आ रही है इन दोनों के बीच में. तो आप जब लिखते वक्त में एक एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे नोटबुक में. 0 लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 60 लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे 90. क्यों छोड़ना एक एक लाइन? क्योंकि कौन से लाइन में आपका आ रहा है वो अभी फिक्स नहीं है, बट अब यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये लाइन के बीच में आ रहा है. इसके बीच में आ रहा है 60 और 90 के बीच में आ रहा है. मतलब 60 के बाद आ रहा है और 90 से पहले आ रहा है. 60 के बाद आ रहा है और 90 से पहले क्या आ रहा है? तो 60 के बाद कितना आ रहा है? तो x आ रहा है. कितना x है? 18.46. तो 60 में 18.46 ऐड करो, कितना होगा बताओ? 60 में 18.46 ऐड करो, 78.46. 78.46 हो रहा है. 0.46. यस सर. समझ में आया? 60 के बाद आएगा और 90, 60 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा. ठीक है, इतना तो चीज क्लियर हो गई कि 60 वैल्यू से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा. तो 60 से ज्यादा कितना होगा? तो वो x अभी निकाल लिया अपने 18.46. तो 60 प्लस 18.46 इट कम्स टू बी 78.46. तो अब मैं इसको हाइड किया था पहले मैं, अब उसको अनहाइड करता हूँ. तो उसकी वैल्यू आ गई 78.46. तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट हो गया 78.46. मैं इसको रेड में भी कर दिया इसको. ठीक है ना, 78.46.
ठीक है, तो 60 प्लस 18.46 द वैल्यू कम्स टू बी 78.46। तो अब ये पूरी लाइन इंसर्ट हो गई है बीच में। क्यों बीच में आ गई है? क्योंकि ये पार्ट आपका इसके लाइन के ऊपर में फिलिंग बन गया और ये लाइन के नीचे में बन गया कटिंग। ये बायफरगेट कर दिया इसने, ये लाइन ने 78.46 ने बायफरगेट कर दिया कि ऊपर का पार्ट बन गया फिलिंग और नीचे का पार्ट बन गया कटिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. अब मेरा ओरिजिनल 5th कॉलम में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, डेप्थ तक आपने कैलकुलेट कर दिए थे, डेप्थ तक कैलकुलेट हो गया था। अब नेक्स्ट कॉलम में अब मैं आ रहा हूँ मीन डेप्थ के कॉलम में। अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस मीन डेप्थ के कॉलम में। ठीक है, अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला था? d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज वी आर यूजिंग मिड सेक्शनल मेथड। ठीक है, मिड सेक्शनल मेथड। अब देखो ऐड करते हुए जाओ। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, ये लाइन इंसर्ट कर दिया क्योंकि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ऐड कर दो, ऐड करो 0.6 प्लस 0.65 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बताओ? 0.625. Yes, 0.6 plus 0.65 divided by 2, it is 0.625. 0.625 आ रहा है 0.625 यहाँ पे वैल्यू। अगेन देखो इसकी Yes, लाइन sir. पूरी ब्लैंक हो गई, ऊपर की लाइन ब्लैंक क्यों हो गई? जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बाद से सारी रो ब्लैंक हो जाती है। जहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बाद की पूरी रो क्या होगी? ब्लैंक होगी। ठीक है, तो 0.6 प्लस 0.65 डिवाइड बाई 2 इट इज 0.625 हो गया फर्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट ले आप देखो 0.65 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बताओ? 0.525. हो गया 0.2525 आ गया, Yes. 0.525 आ गया। नेक्स्ट Yes, sir. 0.4 प्लस, अब यहाँ पे ब्लैंक था क्योंकि अपन ने एक रो इंसर्ट किए यहाँ पे जो चेनेज को डिफरेंस को मतलब चेनेज डिफरेंस था प्लस से माइनस तक। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट किए, अब रो में वैल्यू नहीं थी तो मैंने एक अज्यूम किया कि उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना, 0 अज्यूम कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, तो 0.4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 0.2. 0.2. 0.2। 0.2. ये चीज समझ में आ रही है क्यों 0 इंसर्ट किया अपन ने? क्योंकि ये पूरी लाइन इंसर्ट हुई है, क्योंकि ये चेंज हुआ यहाँ पे ट्राइंगल की वजह से चेंज हुआ है प्लस से माइनस तक। ठीक है, तो इसलिए अपने यहाँ पे वैल्यू अज्यूम 0 की है, 1 अज्यूम नहीं कर सकते आप क्योंकि वैल्यू कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कैलकुलेशंस के लिए 0, बट ये ब्लैंक ही एक्चुअल में ये ब्लैंक है ना, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो 0.4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 0.2। अब एक क्राइटेरिया और क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? कि 0 किससे ऐड हो रहा है? देखो 0 किससे ऐड हो रहा है? 0 0.4 से ऐड हो रहा है, 0.4. है ना? 0 है, 0.4 से ऐड हो रहा है। ठीक है ना, या फिर 0.40 से ऐड हो रहा है, ये वन एंड द सेम। मतलब ये फिलिंग से ऐड हो रहा है, फिलिंग से ऐड हो रहा है तो फिलिंग की वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, अब ये 0 सब्सट्रैक्ट किससे हो रहा है? देखो 0, अब माइनस मत लो, 0 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 0.125. 0.125. 0.125. 0.125। मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हूँ बट यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, 0.125 है। अब 0 किससे हो रहा है ऐड? माइनस वैल्यू से। माइनस इंडिकेट्स कटिंग, दैट मीन्स ये यहाँ के इसके नीचे में जितने वैल्यूज आएंगे वो कटिंग में आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, 0 कटिंग से हो रहा है तो कटिंग के लाइन में आ जाएगा, 0 फिलिंग से ऐड हो रहा है तो फिलिंग आ जाएगा। ठीक है, 0 किससे जाके मिल रहा है उसके ऊपर वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, 0 कटिंग से हो रहा है तो कटिंग की माइनस वैल्यू होगी। अगेन माइनस छोड़ दो, 0.25 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगी? देखो 0.425. आ गया। 0.425. 0.6 प्लस 0.65 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आएंगी वैल्यू बताओ? 0.625. 0.625. यस, नेक्स्ट आएगी 0.665 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 0.575. 575। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना डाटा क्लियर हो गया है।
एक्चुअल में ये एक्सेल में बन रहा है, इसलिए ये माइनस, ये फॉर्मूलाज बना है, मतलब ये फॉर्मूलाज मैंने फीड किया था तो ये माइनस आगे तक यूज हो गया। बट आप एक बार माइनस साइन यहाँ पे डेप्थ में लिख दिए, अब आगे में माइनस यूज मत करो, ठीक है ना। ये एक्चुअल में कैसा है कि एक्सेल शीट में जो चीज अपन फीड करते हैं वही फॉर्मूला आगे यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उसने यहाँ पे भी माइनस बताया, यहाँ पे माइनस बताया। आप यहाँ पे माइनस में लेके कंफ्यूज मत हो, मीन के फॉर्मूले में कोई वैल्यू माइनस नहीं होगी, ठीक है। एक बार आपने डेप्थ में लिख दिया माइनस, अब यहाँ पे और आगे बीडी में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे मत लिखो माइनस, ठीक है। ये मीन में भी मत लिखना है और बीडी में भी मत लिखो, ये आपको माइनस कंफ्यूज कर देगा। एक बार डेप्थ में आपने रिप्रेजेंट कर दिए कि माइनस हो गया, मतलब कैलकुलेशंस आपके आगे में सारे कैलकुलेशन पॉजिटिव में आप लेके चलो उसको, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेल में आप फॉर्मूला फीड किया था मैंने, इसलिए वो माइनस आगे भी दिख रहा है आपको। अब बीडी में देखो, बी विथ था अपने सबसे ऊपर में, देखो 7th रो में, यहाँ पे 7th में जो था सीरियल नंबर में, देखो बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू 12 मीटर्स। तो अब 12 मल्टीप्लाइड बाय डी करेंगे आप, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। तो अब फर्स्ट रो तो ब्लैंक हो गई क्योंकि वी आर यूजिंग द मीन, तो अब ये डी अब यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.625, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 कितना आ रहा है बताओ? 7.5. 7.5। 7.5. यस, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू 0.525 कितना होगा? 6.3. 6.3. 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना होगा? 2.4. 4. 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 कितना होगा? 1.5. 1.5। 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.425 कितना होगा? 5.1. 5.5। 5.1. अगेन 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.625, ये चीज फिर से आ गई 7.5। अगेन 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.575 कितना होगा? 6.9. 6.9. 6.9. ठीक है। तो जस्ट वी हैव मल्टीप्लाइड दिस डेप्थ जो अपने पास अब याद होगा आपको, तो अपन ने इसको डीएम नाम दिए थे, डीएम मीन डेप्थ को नाम दिए थे डीएम। तो फॉर्मूला अपने पास था बीडीएम, डी को इंस्टेड ऑफ डीएम कर दिए थे क्योंकि मीन डेप्थ आप यूज कर रहे हैं, तो बीडीएम। तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल बीडीएम, बीडीएम जो था वो सबके निकाल लिया आपने, ठीक है ना। ओनली वी हैव मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल बी, ठीक है। अब एस डी एम स्क्वायर, एस डी एम स्क्वायर या फिर एस डी स्क्वायर बोलो और या फिर एस डी एम, वन एंड द सेम। तो एस डी स्क्वायर, तो ये डेप्थ से इसका स्क्वायर और विथ सॉरी डी स्क्वायर, डेप्थ का स्क्वायर, मेन डेप्थ का स्क्वायर और एस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप एस कौन सा लेंगे, वेदर वी हैव टू टेक कटिंग एस और फिलिंग एस, ठीक है। तो अब ये चीज अगेन ये डेप्थ के फॉर्मूलेज में जो माइनस प्लस था वही चीज से आप यहाँ पे एस यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले में एस यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये दोनों ऐड होके ये बन गया था फिलिंग वाला पार्ट, मतलब एस एफ यूज करेंगे, एस एफ इंटू डी स्क्वायर। बताओ एस एफ कितना था, एस एफ कितना है? और एस बी, एफ बोलो या फिर बी बोलो, एस बी कितना है? 2 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 स्क्वायर, बताओ कितना होगा? 0.7. 7.8.125. 0.5. आ रहा है 0.78125। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एस एस कौन सा लिया आपने यहाँ पे? Two. एस लिए, Banking. लिए बैंकिंग का एस लिए, ठीक है ना? Banking. ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ले लो, नेक्स्ट लाइन में आपको कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ये जो 0.4 आया था वो किससे? अगेन ये बैंकिंग में ही यूज हुआ था, ठीक है। अगेन एस बी लेंगे, ठीक है ना, एस बी डी स्क्वायर लेंगे आप। तो अगेन एस बी डी स्क्वायर मतलब एस इज 2 इंटू 0.525 स्क्वायर, 0.525 स्क्वायर कितना आएगा? 0.5512. 0.55125. यस। नेक्स्ट अगेन 0.4, ये बार बार आपके डेप्थ के फिगर में, डेप्थ का कॉलम आपको रिफर करना है, बार बार डेप्थ के कॉलम में देखना है क्योंकि आप एस उसी का यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला, मतलब डेप्थ के फॉर्मूलेज में माइनस प्लस जो यूज हो रहा है, ठीक है। बार बार आप डेप्थ की चीज डेप्थ के कॉलम में देखते जाओ, ठीक है।
अब देखो ये रो चल रहा है अपने पास, पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ या फिर यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा कुछ, 0.08 वाले वैल्यू बाद में आएगी, पहले ये मतलब फीड करना है यहाँ पे। अब ये लाइन में अगर डेप्थ में देखो 0.4 और 0 से था, मतलब 0 अभी कुछ वैल्यू नहीं थी मगर 0.4 से था, मतलब ये रो भी अगेन बैंकिंग में आ गई। ठीक है, तो अगेन देखो एस बी डी स्क्वायर हो जाएगा फिर, तो अगेन 2 इंटू 0.2 स्क्वायर कितना होगा बताओ? 0.08. 0.08 आ गया। अगेन अब यहाँ से अपना काम होगा, ठीक है, 0 अपन ने ऐड किए थे माइनस से, तो अपनी वैल्यू माइनस थी, मतलब अब एस सी यूज होगा यहाँ पे, एस सी इंटू डी स्क्वायर। तो एस सी कितना गिवन है फिगर में देखो 1.5. 1.5. 1.5 इंटू 0.125 स्क्वायर, 1.5 इंटू 0.125 स्क्वायर 0.0937. 0.09375। 9375. ठीक है, अगेन अब यहाँ से नीचे सारे एस सी यूज होगा। ठीक है, अगेन एस सी इंटू 0.425 स्क्वायर कितना होगा? एस सी मतलब 0.27. हाँ 0.27. 0.27। यस सर, सर वो 0.09 नहीं है, ऊपर वाला भी रॉन्ग है। 0.023 आ रहा है. ऊपर वाला क्या आ रहा है? 1.5 करेंगे ना, 1.5 इंटू 0.023. 0.023 आ रहा है। नहीं नहीं, आप एस सी ले रहे हैं एस बी ले रहे? सर एससी ले रहे. 1.5. हाँ, तो 1.5 लिए, तो 1.5 इंटू 0.125 स्क्वायर। 0.02343. अच्छा गलत हाँ सर. गलत आ रहा है। हाँ सर उसका ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार, 0. अभी चेक कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला मेरे पास है, थोड़ी सी ये शीट में बड़ी कर देता है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास। ओके, यस 1.5 स्क्वायर इंटू 0.35 स्क्वायर बराबर तो है 1.5 इंटू 0.125 स्क्वायर। ओके, ये कैसा होगा एक्चुअली यहाँ पे 0.02393 कुछ गलत हो गया इसका फॉर्मूला में। ओके, तो here we will have this as 0.02345. हाँ ये 0.125 बराबर था पहले में, यस सर, बराबर था. वो बराबर था। हाँ. ये एक्सेल में क्या हो गया फिर, चेंज कुछ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 0.023 234. 2343. 43। 3. ठीक है, आ गया 0.02343। ठीक है, सब आ गया करेक्ट। अब नेक्स्ट निकालो, देखो अब नेक्स्ट निकालो एस डी स्क्वायर। तो एस अब अगेन स्टैंड्स फॉर दैट इज इन कटिंग, एस सी मतलब 1.5, तो 1.5 इंटू 0.425 स्क्वायर, ये भी वैल्यू गलत है क्या सही है बता दो। 0.2709. 0.2709. 0.0 2709. 0.2709. नहीं सर, सर 0.27. 0.2709. 0.2709 बराबर। हाँ. Yes sir. ठीक है, करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट अब ये आएगा अगेन एस सी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.625 स्क्वायर, 0.625 स्क्वायर। 0.5859. 0.5859. अच्छा, ये शायद से इसने माइनस ले लिया, यहाँ पे सारी चीजें माइनस लेके कम कर दिया। ओके, ठीक है ना।
ये इसने क्या किया यहाँ पे माइनस ले लिया यहाँ पे एक्चुअल में शायद से minus। चलो ठीक है, मैं इसको बाद में चेंज कर लूंगा एक्सेल मेरे शीट में। मैं इसकी वैल्यूज बता दूंगा कितने आ रही वैल्यूज इसकी बोल रहा हूँ 0.5859 5859। लास्ट बताओ, ये भी एससी यूज होगा 0.4959 0.4959। 59 ठीक है, आ गया सबका? यस सर। ये लास्ट के आंसर्स करेक्ट है सबके? Yes, yes sir. sir यस सर। इसलिए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि while solving the problems you should keep with you the calculators। ठीक है ना, ये जैसा है कि अब मैं एक्सेल में तो कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सेल में आंसर्स करेक्ट है, बट उसमें कुछ रहता है प्रोग्रामिंग में, कुछ ऐसा रहता है कि वो फीड नहीं लेता है बराबर। यहाँ पे तो दिख रहा है बराबर, बट इसने लिया नहीं है। ठीक है ना, ये माइनस की वजह से नहीं लिया मैं दे लूंगा इसको। तो ऑलवेज while solving the problems you should keep the calculators। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेटर लेने रखने की वजह से ये अपने आंसर्स करेक्ट हो गए। देखो सब नीचे के पूरे आंसर्स अपने करेक्ट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एरिया निकालना है आपको। तो एरिया में क्या करेंगे आप, ये दोनों ऐड करेंगे। तो फटाफट ऐड करते जाओ, ये भी करेक्ट है क्या बता दे जाओ मेरे को। फर्स्ट में 7.5 प्लस 0.78125 बराबर आ रहा है ये। 8.281 8.281 हाँ मतलब करेक्ट आ गया। नेक्स्ट वाला नंबर 2 बताओ, 6.3 प्लस 0.55125 बराबर आ रहा है। हाँ सर 6.851 6.85 बराबर आ रहा है। 2.4 प्लस 0.08 बराबर आ रहा है क्या? देखो 2.48। yes sir 2.48 2.48 ओके, अगेन देखो यहाँ पे 1.5 प्लस 0.02343 बराबर आ रहा है कि 1.52। यस सर। 1.52 हाँ सर 5.1 प्लस 0.2709 ये भी करेक्ट आ रहा है क्या? यस सर करेक्ट है। हाँ सर करेक्ट है? करेक्ट है हाँ सर यस सर। yes sir करेक्ट है। हाँ मतलब सिर्फ यहीं पे रॉन्ग हो रहा था। 7.5 में ऐड करो ये 0.5859 हाँ सर बराबर है 8.085 Yes, बराबर sir. है। 505. हाँ सर अब बराबर है 6.9 में ऐड करो 4959 पॉइंट 7.39 7.39. 4 मतलब अप्रोक्सीमेट। 7.39 मतलब ये कैलकुलेशन बाद वाला कॉलम करेक्ट है, सिर्फ 7 के लास्ट 4 अपने जो थे वो रॉन्ग हो गए थे ड्यू टू सम एरर एक्सेल में। ठीक है ना, तो यार आगे के कैलकुलेशंस मतलब अपने करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, लेंथ। हाँ अब लेंथ भी इम्पोर्टेंट है, लेंथ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा यहाँ पे रो ऐड हुआ, मतलब क्या हुआ, चेनेज ऐड हुआ 60 से लेके, फिर से मैं चेनेज के कॉलम में जा रहा हूँ क्योंकि लेंथ इट इज बीन डिपेंडेंट ऑन चेनेज। ठीक है, मैं फिर से चेनेज के कॉलम में जा रहा हूँ, फिर से अपन वही चीज रिपीट करो। 60 से लेके 78.46 था, 78.46 से 90 था, मतलब एक चीज इंसर्ट हो गई, मतलब वो चेनेज में इंसर्ट हुई, मतलब चेनेज का डिफरेंस चेंज होते जाएगा लेंथ के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं लेंथ लिखूंगा कैसा, 30 माइनस 0। तो 30 माइनस 0 बताओ कितना आएगा? 30 आएगा। 30 इज दैट क्लियर? 60 माइनस 30, yes sir रिवर्स में जाऊंगा, अब ऊपर नीचे से ऊपर जाऊंगा। 60 माइनस 30 और लिखूंगा नीचे में, तो आ गया 30, आ गया 30। सेकंड वाला 30 आ गया क्या? अब देखो 78.46 माइनस 60 कितना आएगा? 18.46 18.46. 18.46 कहाँ पे लिखेंगे? 78.46 के रो में, 78.46 के रो में लिखेंगे आप। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे आप 18.46। ठीक है ना, यहाँ पे इसको रेड में कर दिया देखो मैंने। ठीक है, तो 18.46 कैसा आया? 78.46 माइनस 60 विल बी रिटर्न इन द रो ऑफ 78.46। 18.46 आ गया। अब नेक्स्ट रो एम्प्टी है मेरे पास, अगेन चेंजेज में जाऊंगा। 90 माइनस 78.46 कितना होगा? 11.5. 11.54 यस आ गया 11.54। अब 120 माइनस 90, मगर लिखूंगा 120 के रो में, 30 आ गया। yes 150 माइनस 120 30, अगेन 30 आ गया। 180 माइनस 150 अगेन 30 आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे ये दो चीज समझ में आ गई
क्योंकि ये दोनों ऐड होने के बाद में 30 था, टोटल 30 था। जो मैंने जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके समझाया था आपको स्टार्टिंग स्टेज में, वही चीज यहाँ पे फिर से मतलब रिपीट हो रही है लेंथ के फॉर्म में। 18.46 एंड 11.54। तो वाइल फाइंडिंग आउट द लेंथ आपको पिछला माइनस मतलब जो नेक्स्ट जो रहेगा वो और प्रीवियस में माइनस करके नेक्स्ट वाले के रो में लिखना है आपको, नेक्स्ट वाले के रो में, ठीक है। तो 30 माइनस 0 30 के रो में आ गया, 60 माइनस 30 30 के रो में आ गया, 78.46 माइनस 60 78.46 के रो में आ गया, 90 माइनस अगेन 90 के रो में आ गया, 120 माइनस 90 90 के रो में आ गया। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्वांटिटी ऑफ फिलिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी वैल्यू आपने फिलिंग से कटिंग में डाल दिए तो आपका एक तो लॉस होगा मतलब रेट्स का, और एक तो फायदा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को फायदा भी नहीं होना है, लॉस भी नहीं होना है। जो वैल्यू निकल रही है वो वैल्यू मेरे पास होना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको फायदा भी करके नहीं देना है, नुकसान भी नहीं। जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं अगेन मेरे डेप्थ के फॉर्म में अब देखूंगा, ठीक है। तो 0.65 था मेरे पास प्लस में, तो ये फिलिंग के कॉलम में आ गया। फिलिंग में मतलब क्या करूंगा, दोनों ऐड मल्टीप्लाई कर दो। तो 8.28 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होगा, कितना होगा 248.4। आ गया। 48.44। अब देखो फिर से डेप्थ में, डेप्थ हरदम मतलब डेप्थ वाली चीज नजरों के सामने होना है आपके। 0.65 और 0.4 ये दोनों चीजें काय में थी, ये रो डेप्थ था, मतलब फिलिंग में आ गया। अगेन फिलिंग में आ गया 205.54। अब देखो 0.4 और 0 को ऐड करे थे मगर ये फिलिंग में था, तो ये फिलिंग में आ गया फिलिंग में, ये तीनों फिलिंग में आ गई। अब 0 आ गया था डेप्थ के माइनस 0.25 के फॉर्म में लिखे थे एवरेज लेके, मतलब माइनस हो गया ये, मतलब ये आ गया रो कटिंग में। समझ में आ गई कटिंग में कैसा आया? यस, यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर? कटिंग में स्टार्ट हो गया, Yes, देखो sir. यहाँ पे ऊपर के Yes, 3 sir. वैल्यूज फिलिंग में आ गए और बाद के वैल्यूज अब कटिंग से स्टार्ट हो गए। वो कैसे आइडेंटिफाइड हुआ? वो आइडेंटिफाइड हुआ डेप्थ के कॉलम नंबर 4, नाम दिया देखो 1 2 3 4। तो फोर्थ वाले कॉलम में आपको बार बार देखना है कि ये 0 जाके किससे ऐड हो रहा है। 0 फिलिंग से ऐड हो रहा है तो फिलिंग में लिख देंगे, 0 कटिंग से ऐड हो रहा है तो कटिंग में लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये 4 वैल्यूज बाद के कटिंग में आ गए। आगे समझ में सबको? क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। Yes, sir. यस सर। Yes. अब ये Yes. तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो। तो ये तीनों वैल्यूज को येलो में मैंने जो लिखा हूँ ये तीनों ऐड करेंगे तो 499.76 हो जाएगा, और ये चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 643.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आज का इम्पोर्टेंट था। इट टेक्स नियर अबाउट 1 आवर, आपका पूरा 1 घंटा एक लेक्चर जो है पूरा एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने में हो गया। बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट कटिंग में गया, कुछ पार्ट फिलिंग में गया, बट वो डिसाइड हुआ आपके डेप्थ के कॉलम में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो हाईलाइट किया था ये 3 रेड मार्क में, ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से कहाँ तक फिलिंग होगा और कहाँ से कहाँ तक कटिंग जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes. Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फिलिंग it comes to be 499.76 and total quantity of cutting it comes to be 643.2 cubic meters। ये इसको और बड़ा कर दो तो ये पॉइंट्स में आ जाएगी, ये भी बड़ा कर देता मैं, ठीक है। तो इट इज नियर अबाउट 76 था मगर एक्चुअल वैल्यू इसका 499.7558 था और 643, मतलब लास्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे। आखिरी में मैंने लिखा नहीं हूँ बट आपको लिखना है total quantity of filling equal to 499.7558 and total quantity of cutting equal to 643.16138 cubic meters. So here we will end this today's lectures. So is that clear to everyone? Yes. यस